Good morning students. Hope you are all good. This is your science classes and we discussed chapter number 6 physical and chemical changes. Previously we completed the topic what is chemical change and also we completed what is chemical equations. So today we are going to start revision characteristics of chemical change. So students, first point is a new product or products formed from reactants in a chemical change are different in chemical properties from the reactants. Second point, most of the chemical changes are irreversible Third point, the chemical changes always result in energy changes. So students, characteristics of chemical changes के क्या क्या characteristics होते हैं. First point, a new products formed from reactants in a chemical change are different in chemical properties from the reactants. Means chemical reaction के दौरान कोई भी अगर वहाँ पे प्रोडक्ट या तो सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है या तो डबल या ट्रिपल, यानी कि एक से ज्यादा या एक से कम या तो एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है. और बेसिकली ये है जो भी प्रोडक्ट वहां पे न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो क्या है, वो रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी से बिल्कुल ही डिफरेंट होगा. मोस्ट ऑफ द केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल. मीन्स जितने भी केमिकल चेंजेस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं. नाउ द केमिकल चेंजेस ऑलवेज रिजल्ट इन एनर्जी चेंज. मीन्स केमिकल चेंजेस उसमें उनकी रिएक्शन में जितनी एनर्जी लगती है वो बेसिकली उनकी एनर्जी में भी चेंज होता है. नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज रस्टिंग.
a piece of iron left in the open for some time, it acquires a film of brownish substances This substance is called rust. The process by which rust is formed on an iron object is called rusting. For rusting, the presence of moisture or water vapor and oxygen are essential. Rusting. If a piece of iron left in open for some time, it acquires a film of brownish substances. Means हम लोग आयरन की किसी पीस को ओपन एरिया में अगर रख देते हैं तो वो बेसिकली क्या होता है, ब्राउनिश सब्सटेंस से कवर हो जाता है. दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट. और ये जो ब्राउनिश सब्सटेंस होता है ये रस्ट कहलाता है. द प्रोसेस बाय विच रस्ट इज फॉर्म्ड और एन आयरन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रस्टिंग. फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर और वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन आर इसेंशियल. मीन्स रस्टिंग के लिए अगर इसेंशियल चीजों को हम लोग देखें तो उसमें फर्स्ट वन है मॉइस्चर जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, एंड ऑल्सो ऑक्सीजन गैस, ये भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है. और इन दोनों से सब्सटेंस के मिक्सअप होने के बाद जो आयरन है वो बेसिकली ब्राउनिश कलर में सब्सटेंस का एक थिन लेयर उसमें फॉर्म हो जाता है और यही रस्ट कहलाता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ note point. The process of rusting can be
represented by the following equation. Iron in bracket Fe, oxygen in bracket O2, from air, and moisture, that is H2O, it means water, and then it forms the product that is rust, and it is also called iron oxide, and the formula of iron oxide is Fe2O3. Rust of iron is chemically different from iron. So students, the process of rusting can be represented by the following equations: iron, Fe, oxygen and moisture, and it forms a new substance that is called rust, and the rust of iron is chemically different from iron. यहाँ पे एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ है जो कि आयरन से बिल्कुल ही डिफरेंट है. ओके स्टूडेंट्स, next heading is methods of prevent rusting. Methods of prevent rusting. रस्टिंग को कैसे हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आयरन को हम लोग रस्ट लगने से कैसे बचा सकते हैं. यहाँ पे कुछ मेथड्स गिवन हैं. सो rusting of iron can be prevented if iron articles are not allowed to come in contact with oxygen and water or both.
For this, the following methods can be applied. First point, we can apply a coat of paint or grease. These coats should be applied regularly to prevent rusting. Second point, stainless steel a product of iron Second point, deposit a layer of a metal such as chromium or zinc on iron. Methods of prevent rusting. Rusting of iron can be prevented if iron articles are not allowed to come in contact with oxygen and water or both. Means हम लोग किसी भी आयरन को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं रस्टिंग से, तो बेसिकली अगर हम लोग ऑक्सीजन वाटर या दोनों के कांटेक्ट में आने से हम लोग उसे अगर प्रोटेक्ट कर ले, देन वी प्रिवेंटेड द रस्टिंग ऑफ आयरन. फर्स्ट पॉइंट इज वी कैन अप्लाई अ कोट ऑफ पेंट और ग्रीस. हम लोगों को क्या करना चाहिए, आयरन के पीस पे एक पेंट या ग्रीस की एक कोट करनी चाहिए, जिससे these coats should be applied regularly to prevent rusting. और ऐसा रेगुलरली करने से क्या हो सकता है, हम लोग रस्टिंग से इसे प्रिवेंट कर सकते हैं. डिपॉजिट अ लेयर ऑफ मेटल सच एज क्रोमियम और जिंक ऑन आयरन. या तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, एक लेयर आयरन के ऊपर एक लेयर कोट कर देनी चाहिए, और वो जो लेयर होनी चाहिए वो या तो क्रोमियम की या तो फिर जिंक की होनी चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, और इसमें बेसिकली हम लोग
यहाँ पे जो ये क्रोमियम या जिंक के लेयर की हम लोग जो यूज कर सकते हैं वो बेसिकली कुछ मेथड होते हैं, जैसे हमारा गैल्वेनाइजेशन होता है। इसके बाद गैल्वेनाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, आयरन पे क्रोमियम या जिंक की लेयर को हम लोग उस पे कोट कर देते हैं, जिससे क्या हो सकता है, हम लोग रस्टिंग से आयरन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और या हम लोग इसको बेसिकली जो भी हमारे आयरन रिलेटेड मटेरियल है उस पे हम लोग पेंट कर दे, ग्रीस कर दे, और इसी हम लोग किसी भी खुले प्लेस में हम लोगों को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि खुले प्लेस में बेसिकली क्या है, ऑक्सीजन गैस कंटेन होती है और एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होता है, जिससे मॉइस्चर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही हमारे किसी भी आयरन मटेरियल में क्या होते हैं, रस्टिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। Okay students, so I hope this topic is clear to all of you. In my next video, we discuss some other topic related to this chapter. Thank you and have a nice day.